Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy and today again we are going to discuss very interesting element जहाँ पे यूपीएससी की नज़र पड़ रही है दी वॉरियर क्वींस ऑफ मिडिवल इंडिया। यस, ऐसा बहुत कम है हिस्ट्री में जहाँ पे मेल डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे अगर फीमेल हैं वो एक अट्रैक्शन बन जाता है। वो लेसर नोन एरिया है यूपीएससी के लिए, अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, पेरिफेरल एरिया है यूपीएससी के लिए। दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन are becoming very important because they are rare. This question was asked by UPSC in a recent exam conducted somewhere in March or April में तो नहीं, मार्च में ही कंडक्ट हुआ है ये। अप्रैल में अभी जो recent exam कंडक्ट हुआ है that is CDS एंड उसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे। वी विल कम अप विद दोज वीडियोस और उसके थ्रू हम ये पर्सपेक्टिव्स डेवलप करेंगे कि आने वाले प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। टुडेज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वीन Rudramma Devi. So consider the following statement with reference to Rudramma Devi. Rudramma Devi is also known as Raya Gaja Kesari, and second, the inscription largely project her as a heroic king, not queen. Which of the statements given above is or are correct? अब ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज एनसीईआरटीज में नहीं दिया हुआ है, बहुत प्रोमिनेंट बुक्स में नहीं, जो भी हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हो वहाँ कहीं नहीं दिया है। This is indeed a rare information. However, it is a popular information, popular event है ये, but ज़्यादा कहीं दिया हुआ नहीं है। We will discuss it in detail and we will develop lot of perspectives related to this question. But before that, I want you to tell that we have recently posted this story of a 12th fail police sub-inspector who has qualified the civil services examination, and he is also one of my student, and Shantappa, he has secured rank 644 in the CSE 2023. So his story is very inspiring. You will find his story on our Instagram channel, on our Instagram page. You will find his story. Do watch. Within 59 seconds we have tried to summarize his story and indeed it will inspire you. कई बार आप अपने परेशानियों से और अपने स्ट्रगल को आप बहुत बड़ा समझते हो। हैव अ लुक एट हिज स्टोरी, आपको पता चलेगा कि जीवन में औरों का भी दुख बहुत बड़ा है, औरों के भी स्ट्रगल बहुत बड़े होते हैं। सो व्हेन वी सच स्टोरीज, ये हमें इंस्पायर ही नहीं करते, हमें ये भी बताते हैं कि नहीं, अपना नहीं करना है, अपना ही दुख, अपनी ही चीज़ें, हमें उससे बाहर उठ के भी दुनिया देखनी होती है। सो the links are provided in the description box. Have a look. Talking about Rudramma Devi. So Rudramma Devi कौन है, क्या है, कैसे हिस्ट्री है, we will have a look and डिटेल में डिस्कशन करते एक एक करके। Rudramma Devi of Kakatiya dynasty ruled Orugalu. Now it is known as Warangal in Telangana state. She ruled between 1259 to 1218. She was known for her bravery and administration skills. Interestingly, her tale is narrated by the renowned trader and traveler Marco Polo, who visited and witnessed the Rudramma Devi's rule. She is indeed given the title of Raya Gaj Kesari, which is also known as Lioness to the Elephant like Enemy Kings. Right? तो ये translation है Raya Gaj Kesari. She acquired this title from her father Ganpati Dev after she defeated the Yadav king of Devagiri called Mahadev, forcing him to pay a tribute running into crores in gold coins that she distributed amongst the poor people. Talking about her work, she started many new projects like completion of the Warangal fort, the construction of which was started by her father, but she completed it. She also increased the height of the walls and added a second wall for protection purpose. Rudramma Devi also introduced the Nankara system of military organization, which became extremely popular among the Vijayanagar ruler. Under this system, the holders of Nayakaras or the Nayakas were granted a block of territory consisting of several villages, and in lieu of which they were expected to provide the troops for the central Kakatiya administration as and when it was needed. तो ये हो गई हमारी रुद्रमा देवी। हमने देखा कि इनके पिता कौन थे, ये कहाँ रूल करती थी, इन्होंने अपने अपने कार्यकाल में क्या क्या शुरू किया, मिलिट्री सिस्टम से रिलेटेड, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, एंड किसको हराया। बिकॉज ऑफ दैट डिफीट शी डिफीटेड दी जो भी यादव किंग थे उनको डिफीट किया, उसको डिफीट करने की वजह से इनको ये राया गज केसरी, एलिफेंट लाइक किंग्स को हराने की वजह से इनको ये टाइटल मिला था।
बट पता है हर जगह मोस्टली इनफैक्ट इनके पिताजी ने इनकी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए इन्हें मेल प्रोजेक्ट किया कि पहले क्या होता था, पहले पैट्रियार्कल सोसाइटी, अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तब आपका जो वंशज चलती थी, जो आपके जो भी आपके आगे जो रूल करेगा वो रूलर जो है मेल होना चाहिए। इसलिए इनके पिता ने भी इनको प्रोजेक्ट किया कि ये मेल हैं, मेरा जो बेटा है बेटी नहीं है। सो दैट्स हाउ ही tried his best to hide her identity, and when she started realizing कि नहीं she is a woman, she started exploring और धीरे धीरे ये बात सबके सामने आई। बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो इंस्क्रिप्शंस हैं या जब भी इनकी स्टोरी नरेट की गई है, द हिस्टोरियंस ऑल्सो दे ऑलवेज हैव प्रोजेक्टेड हर एज अ मेल किंग, एक मेल के रूप में इनको दिखाया गया है। और इसी वजह से कई जगह इंस्क्रिप्शंस पे इनकी जो ग्लोरी है, जब इनकी स्टोरी को इनका बखान किया जाता है, जब इनका गुणगान किया जाता है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मेल किंग, नॉट फीमेल क्वीन वॉरियर, तो उसके रूप में नहीं दिखाया जाता है। सो अभी हमें इनके बारे में पता चल गया, कहाँ से आती हैं, काकतीय से टाइम पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट काकतीय डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी के बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए, देख लेते हैं। काकतीय डायनेस्टी वाज क्रिएटेड बाय पोरोला राजा II and they ruled over the present day Telangana and Andhra Pradesh, as well as certain parts of the eastern Karnataka and southern Odisha. And the earliest known records describing the Kakatiya as a sovereign power is the Anumakonda inscription of Rudra Dev. He is also known as Pratap Rudra I. The Kakatiyas, they followed Hinduism but exhibited tolerance towards Jainism. And in fact, their gold coin, known as Gadavanam, reflected the economic prosperity of their kingdom. ये थे हमारे काकतीय डायनेस्टी। काकतीय डायनेस्टी कौन एस्टैब्लिश किया? काकतीय डायनेस्टी से ही रुद्रम्मा देवी आते, उनके पिता के बारे में हमने देखा ही देखा। एंड ऐसे आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे। एंशिएंट टेम्पल ट्रांजिशन ओवर ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, तब काकतीय देवी टेम्पल बिल्ट बाय काकतीय रूरल, गणपति देव वाज नन अदर देन रुद्रम्मा देवीज फादर, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। तो इस तरीके से हमेशा न्यूज़पेपर में भी आपको ऐसे आर्टिकल्स मिलते रहते हैं। Another article was 13th century inscription unearthed in Prakashan. Kakatiyas कायस्थ चीफ ऑफ त्रिपुरा देवीज इंस्क्रिप्शन बिलीव्ड कि काकतीय रुद्रम्मा देवी पीरियड में ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे। इनफैक्ट टू टेल यू, रामप्पा टेम्पल जो है वो एक गणपति देव के जो जनरल थे उन्होंने बनवाया था एंड इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। इनफैक्ट टू टेल यू, द रिनाउंड कोहिनूर डायमंड इनिशियली ओन्ड बाय द काकतीयास लेटर फाउंड इट्स वे इनटू द हैंड्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत during the attacks on the Kakatiya kingdom in the late 13th century. And if we talk about Kakatiya rule, it symbolizes the era of prosperity, cultural brilliance, and ultimately by 1323 AD, Warangal fell to Ghiyasuddin Tughlaq, the Sultan of Delhi. And इसकी वजह से धीरे धीरे काकतीय रूल खत्म हो गया और दिल्ली सल्तनत जब आया उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। रुद्रम्मा देवी के ऊपर मूवी भी आई थी 2015 के अराउंड। अनुष्का शेट्टी शी प्लेड द रोल ऑफ रुद्रम्मा देवी। तो ऐसे कभी कभी मूवीज भी आपको स्टोरीज बता सकती है और मूवीज के थ्रू भी हम स्टोरीज को याद रख सकते हैं। बट टॉकिंग अबाउट क्या ये एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में जरूर दिया है, बट कहाँ दिया है देख लेते हैं। व्हाट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया, बिकॉज रजिया सुल्ताना भी एक ऐसी वॉरियर क्वीन थी मिडल पीरियड की, इल्तुतमिश की बेटी थी। सो वी नो हर दैट she was ruling, she was the only female or you can say only queen to rule Delhi, warrior queen who ruled Delhi। तो जब इन्होंने रजिया के बारे में मेंशन किया है, रजिया के बारे में डिस्कस करते, they are talking about on her inscription and coins Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. This was in contrast to the Queen Rudramma Devi in 1262 to 1289 of Kakatiya dynasty of Warangal, part of modern Andhra Pradesh. Why it was different? Rudramma Devi changed her name on her inscription and pretended she was a man. अब रुद्रम्मा देवी ने चेंज किया या उनके फादर ने चेंज किया या हिस्टोरियंस ने चेंज किया, डिबेट है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी बोलता है कि उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। Another queen, Didda, ruled Kashmir. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, obviously affectionate term given to
loved ruler by her subjects, तो इनके बारे में भी थोड़ा आप रिसर्च कर लीजिएगा. लेट मी सी कि आप लोग में से कितने लोग दिद्दा के बारे में रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखते हैं. राइट, तो एनसीईआरटी में एक ही जगह इनका मेंशन है, रुद्रम्मा देवी, और कैसे शी इज डिफरेंट विद व्हेन वी कंपेयर हर विद रजिया सुल्ताना. तो ये कुछ हमारे रुद्रम्मा देवी के बारे में, काकतीय डायनेस्टी के बारे में, और काकतीय डायनेस्टी में द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कोहिनूर, और क्या क्या डेवलपमेंट हुए ये देखा हमने. नाउ जब भी आप ऐसी न्यूज़ अगर पाते हैं, 13th century inscription neglected, some inscription indicates काकतीय डायनेस्टी, 13th century stone inscription erected to commemorate the birth celebration of Rani Rudramma. This is very important. This, when I was सर्चिंग अबाउट रुद्रम्मा देवी की हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में क्या मिलता है, न्यूज़पेपर में क्या आता है, देन आई फाउंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि 13th century में एक स्टोन इंस्क्रिप्शन इरेक्ट किया गया था टू कमेमोरेट द बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ रुद्रम्मा देवी. अ पॉपुलर रूलर ऑफ काकतीय डायनेस्टी इज लाइंग इन अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट, और द इंस्क्रिप्शन नोन एज पॉपुलरली एज Malkapuram inscription. Now tomorrow if UPSC is asking in some exam, Malkapuram inscription is related or is associated with whom, you should know it is associated with Rudramma Devi and her to celebrate, to commemorate the birth celebration. So this inscription is also very important because we are living in an era of inscription जहाँ पे UPSC inscription से related ancient history, medieval history से related question match the following में भी दे देता है. So this is very important. Malkapuram inscription, ये सब आपको books में कहीं नहीं मिलेगा because books we have seen NCERTs are talking about only briefly about Rudramma Devi. So this way we should be very alert. जहाँ से information मिलती है related information को weave करना है with our static information, right? So this is very important development. And further, अगर future में अगर आप इस तरीके से alert रहोगे, then you can collect and add the information to your notes or wherever online or offline you are making the notes, because this is important. Talking about other women warrior queens, other women warrior queens के बारे में भी हमें पता होना चाहिए. So let's have a look. 4-5 के बारे में देख लेते हैं ताकि अगर कभी मैच द फॉलोइंग है तो आपको पता रहे कि वो मिडिवल पीरियड से हैं. हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिवल इंडिया ओनली. सो लेट्स हैव अ लुक. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, रजिया सुल्ताना. शी वाज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. शी रूल्ड इन द पीरियड ऑफ 1205 to 1240 AD. Talking about next, Chand Bibi of Bijapur in 1565. Chand Bibi, barely in her teens, was given in marriage to Bijapur's Sultan Ali Adil Shah. Talking about Rani Durgavati next. Rani Durgavati of Gondwana ruled for 16 years and she was known as the moderate and skillful monarch, and she excelled at both diplomacy and conquest. Talking about the last one, Rani Abakka Chauta of Tuluva. She was the only woman in the history to confront, fight and repeatedly defeat the Portuguese. Rani Abakka's unflagging courage and indomitable spirit are indeed legendary. So we should know about these people, right? तो इनके बारे में अगर हमें पता है तो we can easily safely say कि ये लोग जो हैं medieval period से हैं, and we won't be only able to match कहाँ किससे associate करना है ये भी पता चल जाएगा. ठीक है. So this is about the रुद्रम्मा देवी और उससे रिलेटेड वुमेन वॉरियर किंग क्वींस के बारे में हमने देखा. नाउ इफ वी रिविजिट द क्वेश्चन अगेन, रुद्रम्मा देवी इज ऑल्सो नोन एज राया गेज केसरी. हमने देख लिया क्यों और ये टाइटल उनके पिता का था और उन तक कैसे पहुंचा, दैट वी हैव सीन. नाउ द इंस्क्रिप्शन लार्जली प्रोजेक्ट हर एज अ हीरोइक किंग एंड नॉट क्वीन. हमने एनसीईआरटी में भी देखा दैट रुद्रम्मा देवी यूज्ड टू प्रोजेक्ट हर एज अ किंग. हाउएवर स्टोरी कुछ और है. स्टोरी है कि उनके पिता उनको किंग की तरह दिखाना चाहते थे, हिस्टोरियंस दिखाना चाहते थे, बिकॉज लोगों का आज भी पैट्रियार्कल सोसाइटी में है. एंड लेट मी शेयर दिस स्टोरी और माई ऑब्जर्वेशन. आज की डेट में भी आई हैव सीन विद माई स्टूडेंट्स और भी ऑब्जर्वेशन मैंने सोसाइटी में देखा. इफ़ somebody is at officer level, my students also who are IAS, IPS, IRS हैं, अगर वो चाहे जितनी बड़ी हायरार्की में पहुंच जाएं, उसके बाद भी मेल कम्युनिटी जो मेल डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी है, चाहे जितनी पढ़ी लिखी सोसाइटी हो, बीट बैंगलोर, लखनऊ, दिल्ली, एनीवेयर, they are not easily accepting women at leadership position, and thus they will have ego clashes. Maybe that would have been a reason for this as well. ठीक है, अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए. However, that is not good. और आज की डेट में तो स्पेशली इट इज़ नॉट गुड, बट सैड, इट इज़ अ फैक्ट. सो हियर द आंसर इज
फर्स्ट इज करेक्ट, द इंस्क्रिप्शन लालजी प्रोजेक्ट एज अ हीरोइक किंग नॉट क्वीन, ये दोनों अपने आप में बात सही है, सो द आंसर इज सी. This is all about Rudramma Devi, Kakatiya dynasty, and about women warrior queen. है ना? तो I hope you got a perspective. And we are running our current affairs classes, we are running our test series. If you're facing any problem, you're most welcome. We are also coming up with a self-study workshop for all those students who are preparing for this exam on their own. So you can subscribe, you can register for that workshop, which is a free workshop. The details are given in the description box. See you all in the next video. Take care. Bye-bye.